बैक टू अनदर वीडियो और आपका स्वागत सो है। आज हम लोग देखने जा रहे हैं भाई ऋतिक रोशन स्पीच एट वॉर 2 प्री रिलीज इवेंट एनटीआर, कियारा एडवाणी, अयान मुखर्जी और जो है एक दिन बाद ये रिलीज भी हो रही है। यस 14 अगस्त को ये मूवी रिलीज हो रही है, तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो किया इनकी चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल के स्ट्रीम लिंक भी मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। Sir, eagerly waiting for your speech. But before that, can we ask you a few questions, or do you want me to ask the questions after your speech? Okay, so 25 years of legacy career in this film industry. Years of legacy in this Indian film industry. So where does War 2 fit? Where does War 2 fit in this? అందరికీ నమస్కారం. जिस हाउस में गए हैं। హైదరాబాద్ ఎలా ఉన్నారు? What does it mean? कैसे हो? I hope everybody is comfortable. Thank you for coming. Thank you for this warm welcome. Thank you. हेलो I want to hear the roar of the Tiger fans. तारक नीकू अन्ना वो खुद ही हैरान हो रहा है। नाकू थुम्मड़ू. We're all brothers and we are a family. Seeing you all of here, seeing all of you here, I'm so honored and I am so grateful. Thank you Hyderabad. A long time ago I was shooting here for Krish and I experienced the hospitality, the love, the warmth of the Telugu people, and I am so happy to be back. I'm so happy to be back. Now 4 days away from the release of War 2. युद्धाనికి రెడీనా? लोकल लैंग्वेज में लोगों को कितना जोश And I है। want to say Tarak and I started as co-stars and we ended up like brothers in real life. I want everyone to give me a promise today. Will you give me a promise? I want you to promise me that you will love my brother the same way forever. Because he deserves it. Sorry, I did not answer your question. Hrithik I sir, was taken in by the love. we just love it. We just love it. We love the way you connected with the audience. And I was asking you the question, where does War 2 fit in your filmography in this 25 years journey? War 2 sits right on top of everything that I have done. Right on top. The love and appreciation and encouragement I got when I played Kabir in War 1. That reminded me of the love that I got in Kahuna Pyar Hai, the love I got in Dhoom 2, in Krish. And this time I'm coming back with Kabir. And it is such a joy to play that character that everyone loved so much. I humbly hope that you all enjoy him again. This time he is even more intense and even more in a dilemma and very, very emotional. And he is in front of none other than the real Tiger himself. So this is, I think, going to be something unmissable. Unmissable. You have battled so many injuries that many may not have overcome, but you did it with ease and grace. So how was it doing once again an heavily action-packed film?
Yes, I will be honest. It was difficult. We worked very, very hard. We sometimes injured ourselves. But when I saw this man and how strong he is, I could not complain. I was in pain, but I saw how strong he is and I was like, ah, no, I'm okay. I'm okay. So thank you for the inspiration. And thank you to the entire team, my director. My director has a vision. And to see my director, Ayan, be happy with a shot, it took all my pain away. So thank you to the team, thank you to my director. It has been worth it. Thank you so much. And we are just eagerly waiting to see both of you all match your dance energies. We have seen a 35 seconds promo. Thank you so much, Hrithik Garu. Please go ahead, whatever else that you want to speak with the audience. So, when I feel pain when I'm shooting and I'm thinking, is this worth it? Today when I see all this love, of course it is worth it. I don't know what I have done to deserve this kind of love. And I thank you and I promise you that I will keep working hard so that I always deserve this love. I want to say one more thing. That I see a lot of myself in Tarak. We have had very similar journeys. 25 years now. And I think Tarak sees a little bit of himself in me also. It is true when they say that he is one take, final take star. On set, Tarak, I have not just observed you, but I have learned from you. I have learned how to go into a shot 100%. Not 99.9%, not 99.999, but 100%. Which is why when he comes out of a shot, there is no judgment only. He will not even check the shot because he knows that he has given everything to it. And I have learned that. And I will apply that in my future films, Tarak. Thank you for teaching me that. And a little bit of, I don't know if they know, but do you know how an amazing chef he is? He makes the best food. So I want a promise from you also. Okay, no matter whether we do another film or we don't do another film, but I will always keep tasting your biryani. Always. Lifelong promise. There are so many things I want to say about this man. There are so many things. So एक दिन बाद ही ये मूवी जो है रिलीज़ होने जा रही है एंड आई एम श्योर कि जिस तरह का हम लोगों ने यहाँ पर फैंस को देखा है, मुझे लगता है कि फर्स्ट शो भी इसी तरीके का होने वाला है. वैसे एक चीज़ जो मैंने हमेशा ऑब्जर्व की है कि साउथ में आपको जो एक फ़ैन फॉलोइंग, जो एक क्रेज़ अलग लेवल का नज़र आता है ना, वो मैं कहूँगी अपने आप में ही बहुत अनोखा, और उसका जो अनुभव है मतलब स्टारडम का, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है. वैसे मैं तो भाई पूरे इंडिया में कहूँगा कि आपको जो है ना स्टारडम जितने भी आप देख लें, आपको एक अलग क्रेज नजर आता है. क्योंकि हम अल्लू अर्जुन की बात करें, जब उनकी पुष्पा 2 आनी थी तो जब वो बिहार में गए थे तो वहाँ पे किस तरह लोग जो है वहाँ पर जो है वो आए हुए थे. तो मुझे भाई फैन फॉलोइंग का जो है ना इंडिया में ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि आपको खुली फैन फॉलोइंग जो है वहाँ पर देखने को मिलती है. अच्छा, एक चीज़ आज बड़ी देर बाद जो है ना वो मुझे नज़र आई है. मोस्टली हम जहाँ पे देखते हैं कि भाई एक्टर्स के बीच में लड़ाइयाँ होती हैं या बहुत सारे जो हैं उनके आपस में क्लैशेस होती हैं, तो आपको जो है ना एक वो जो बंधन पुराने आर्टिस्ट में देखने को मिलता था ना, वो नहीं था देखने को मिलता. लेकिन आज जो है ना मुझे वो जिस तरह ऋतिक रोशन सर जो है बात कर रहे थे, तो जैसे पुराने एक्टर्स जो है वो दूसरे अपने साथ को एक्टर्स के काम की तारीफ करते थे और
सराहते थे कि भाई हाँ फलाना जो है वो एक अच्छा एक्टर है, वो चीज जो है वो नजर जो है वो आई है। ठीक है, उस टाइम पे भी क्लैशेस वगैरह होते थे एक्टर्स के, लेकिन एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट जो है वो रहता था, वो आज मुझे नजर आ रही थी। बिल्कुल, मैं भी अग्री करूंगी मौसम की बात से। इनफैक्ट जिस तरह से उन्होंने तारीफ की उनके काम को लेकर, एज अ पर्सन वो जैसे हैं, तो मैंने बहुत कम लोगों को देखा है। लोग नॉर्मली ना, मतलब मैंने देखा कि एक्टर्स बड़ा फॉर्मली बात करते हैं, अगर तारीफ भी करते हैं ना तो उसमें आपको एक नजर आ जाती है वो चीज़ कि वो तारीफ दिल से नहीं हो रही। नहीं, दिल से नहीं, मतलब ऑन स्टेज ही बस है तो दिल से नहीं हो रही। बट ऋतिक रोशन सर ने जिस तरीके से खुलकर एनटीआर सर की तारीफ की है, वो वाकई में सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था। इनफैक्ट जब वो स्टार्टिंग में लोकल भाषा में बोल रहे थे, तो जिस तरीके से एनटीआर सर के एक्सप्रेशंस गए हैं, ऐसा फील हो रहा था कि उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया कि ऋतिक रोशन सर की तरफ से कुछ ऐसा सुनने को भी मिलेगा। हमें लगता है उन्होंने साथ रह ना मूवी में काम करके इकट्ठे थोड़ी बहुत हल्की फुल्की जो है वो सीख ली होगी। नहीं, मुझे लगता है कि जब आप ऑब्वियसली स्टेज पर जाते हो तो आपके जो असिस्टेंट होते हैं वो कुछ ना कुछ आपके लिए प्रिपेयर तो ज़रूर करते हैं, उसमें भी वर्ड्स वगैरह जो है ऐड किए जाते हैं, क्योंकि लोग हमेशा अपनी लोकल भाषा में बहुत ज़्यादा उत्साह शो करते हैं, तो कनेक्टेड भी होते हैं और एक एक्साइटमेंट भी रहती है लोगों को, लोग उस चीज़ को और ज़्यादा सेलिब्रेट करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मैं ये बात बोलूँगी कि वाकई में अगर हम लोग एनर्जी के लेवल की बात करें तो साउथ के एक्टर्स की एनर्जी को मैच करना बड़ा मुश्किल होता है, ये चीज़ हम हमेशा बोलते हैं। और एनटीआर सर की मूवीज़ मतलब रिसेंट टाइम में मैं कहूँगी कि काफ़ी ज़्यादा मैंने भी देखी हैं, जितनी भी नई मूवीज़ उनकी आती हैं तो वो हम लोग देखते हैं। तो काफ़ी बंदा इंजॉय करता है, क्योंकि एक तो मुझे एनटीआर सर वैसे भी अपने भाई जैसे लगते हैं उनकी लुक मुझे बहुत सिमिलर उसकी तरह लगती है, बट जो उनका नाम है, वैसे तो हम एनटीआर बोलते रहते हैं, लेकिन नंदमुरी तारक रामा राव जूनियर, हाँ जूनियर, हमें फर्स्ट टाइम पता चला कि उनका नाम तारक है। अच्छा, जब उन्होंने तारक बोला ना तो आई वाज लाइक तारक मैं सही सुन रही हूँ कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी तारक नाम होता है, तो मैंने कहा पता नहीं मैं सही सुन रही हूँ कि मुझे नहीं भी सुन यही रही, है लगा ना? था, फिर जब 2-3 बार उन्होंने बोला ना तारक तारक, नहीं, उसके बाद भी हम लोगों ने कंफर्म किया है कि भाई उनका नाम जो है वो पूरा क्या है। हाँ। नहीं, वैसे वीडियो की बात कर रहा हूँ कि जब मैंने 2-3 बार तारक तारक बोला ना, तब जो है मुझे वो कि भाई इनका जो नाम में जो NTR में T जो आता है ना, वो तारक है। अच्छा, वैसे ये चीज़ हम लोगों ने मूवीज में भी देखी हुई कि साउथ इंडियन लोगों के जो नाम है वो काफ़ी लंबे होते हैं ना। याद है वो मूवी भी हम लोगों ने देखी थी धमाल, उसमें भी ये चीज़ जो है वो हाईलाइट की गई थी। सो अभी जैसे एनटीआर सर के भी मतलब नाम हम लोग पढ़ रहे हैं तो काफ़ी लंबा नाम है ना। हाँ। इसका मतलब ये है कि इनके ग्रैंडफादर मेरा ख्याल में होंगे, वैसे उनका नाम NT रामा राव। हाँ, तो NTR राव, हाँ एग्जैक्टली, वो जूनियर। वैसे पहले ऐसा काफी ज्यादा होता था कि आप अपने ना ग्रैंड पेरेंट्स के नाम पर बच्चों के नाम रखते थे, दादा परदादा, या कोई ऐसा अजीज रिश्तेदार जो आपको बहुत ही प्रिय हो, उनके नाम पर जो है वो रख दिया जाता है। ट्रू। एनीवेज कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि आप कितने एक्साइटेड हैं 14th को ये मूवी देखने के लिए, और कौन कौन फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जा रहा है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।